प्रभु भोज का समय है। Good morning, church. Good morning once again. सुप्रभात कलीसिया फिर How से। many of you all enjoyed in the presence of Jesus? कितने लोग हैं यीशु की उपस्थिति में आनंद किया? It was just different. I don't know, but I could really feel like a thick anointing and a thick presence, and I could see the name of Jesus getting breathed over each and every one of us. ये बहुत अद्भुत था। मैंने देखा कि यीशु का नाम हर एक के ऊपर उंडेला जा रहा है और प्रभु की बहुत अद्भुत गहरी उपस्थिति यहाँ पे थी। Yeah. Before we start, let's just pray. Let's bow down our heads. हम प्रार्थना करेंगे अपने सर को झुका के। Father in heaven, we come to you in the name of Jesus. पिता, स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। And Father, we thank you for everything that you have done already for us in Christ और Jesus. पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए पहले से कर दिया यीशु मसीह के अंदर। Father, I pray right now that the eyes of our understanding to be enlightened for each and everybody seated here and listening to this word. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु की जो भी हमें सुन रहे यहाँ पे बैठे और ऑनलाइन सुन रहे उनकी समझ की आंखों को आप खोलिए प्रभु। And I pray, Father God, let the true Jesus, the real Jesus, which is revealed in your word, be made known unto us. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सही यीशु, असली यीशु जो आपके वचन में प्रकट किया जाता है वो हमारे लिए सत्य बन जाए। And I pray, Father, that help us to be enlightened and to walk in the truth of your word. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमें मदद कीजिए कि हम आपके वचन की सच्चाई में चल पाए। Father, I thank you because you have already manifested the word among us. मैं पिता आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने पहले से आपका वचन हमारे अंदर प्रकट किया है। And Father God, thank you for the Rhema and the Zoe word that you're going to reveal unto our spirit right now. और आपके जो रेमा और जोई वचन है वो आप हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। In the name of Jesus, Father, we pray to you. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। Amen. आमीन। Let's open the Bible to Ephesians chapter 1, verse again 17. हम अपनी बाइबल खोलेंगे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17वां वचन। सबने खोला है? Everybody ready? क्या सब तैयार है? Now, I want you to just imagine. मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें। Imagine how you guys are watching me. I want you to just imagine that Jesus is right now in front of you. मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें जैसे आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, वैसे ही यीशु आपके सामने खड़ा है, ऐसा आप कल्पना कीजिए। And Jesus is just showing you a small trailer of what he has done for you on the cross. और मसीह आपको दिखा रहा है यीशु की उसने क्रूस पे क्या किया है, उसका छोटा सा झलक आपको दिखा रहा है। And what God the Father did in Christ for us. और जो पिता ने, प्रभु पिता ने हमारे लिए किया है मसीह के अंदर वो। Yeah, so let's read this word. तो हम ये वचन पढ़ेंगे। So Paul says in verse 17, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, पौलुस कहता है 17वें वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, the Father of glory, may give unto us the spirit of wisdom and revelation जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। in the knowledge of him. उसकी पहचान के अनुसार। In the knowledge of whom, guys? This hymn which is talking here is about Jesus. ये जो वचन कह रहा है वो मसीह के पहचान के बारे में बता रहा है। Then it says in verse 18, the eyes of our understanding और आगे का वचन कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें be enlightened, ज्योतिर्मय हो, that we may know कि तुम जान लो what is the hope of his calling, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। Guys, I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ In Jesus Christ, everybody is called. कि मसीह यीशु के अंदर हम सबको बुलाया गया है। Nobody is coming here to just say, मेरे को church जाना है, I just want to see. No, that's not your call. The call is for each and every one. कोई भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया कि चलो संडे है चर्च जाते हैं इसलिए आप नहीं आए हो, आपको मसीह ने बुलाया है। You might be doing the smallest of the smallest work, आप यहाँ पे शायद छोटे से छोटा काम कर रहे होंगे, but in God's eyes, that is the biggest work. लेकिन प्रभु की नज़र में वो बहुत बड़ा कार्य है। You know, Jesus said, यीशु कहता है he who wants to become first among you should be last. कि आपके भीतर जिसको
सबसे ऊंचा बनना है वो सबसे छोटा बनना चाहिए, He who wants to become great must become less or the smallest. जिसे महान बनना है उसे सबसे नीचे आना होगा। So no call of God is small or big. तो कोई भी प्रभु का काम है वो छोटा और बड़ा नहीं है। And for the people seated here and for the people who are called in the name of Jesus, I want to say that each and every one have a purpose and a calling in their lives. तो मैं कहना चाहूँ कि जो भी यहाँ पे आए हैं हमें देख रहे हैं, आपके लिए मसीह में एक इच्छा है प्रभु की। And it says in verse 19, और ये 19वें वचन में कहा गया है, and what is the exceeding greatness of his power towards us? कि उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। Abhi, if you look at this word, verse number 19, what is the exceeding greatness of his power? कि 19वें वचन में अगर आप देखते हो कि उसकी महान सामर्थ क्या है। Ideally, if you study the Bible in Greek, अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ोगे, this word is something which the writers could not fit in the Bible actually. This word was not, they were not able to translate it in the same purpose that it wanted to. तो इसका जो भाषांतर हुआ है इस शब्द का वो सही तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं ढूंढ पाए वो। They tried their best to actually come closer to what the word should define. वो उन्होंने प्रयत्न किया कि वचन जो कहना चाह रहा है उसके पास आकर कोई शब्द इस्तेमाल करे। Yeah, they use this word exceeding, number one. तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि जो महान सामर्थ है। Okay, then they use this word greatness. तो उसके बाद वो महान जो है वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। And then they use the word power. उसके बाद वो इस शब्द का यूज करते हैं सामर्थ। 3 words, guys. 3 शब्द है। Say it with me. Exceeding, एक्सीडिंग, greatness, ग्रेटनेस, and power. पावर। Now, all these 3 words, अगर हम लोग देखेंगे, means if we look at this word individually, these words ideally itself means big, huge, massive. अगर ये तीनों शब्दों का अर्थ हम देखते हैं तो तीनों का अर्थ एक ही आता है कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल, है ना? But the writers and if you look at the Greek, they again says exceeding is like, I just want to give a rough example. I might be very close to what I want to define, but have you seen a rocket? When a rocket is about to ignite, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे है, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपने एक रॉकेट देखा है जो ऊपर उड़ता है। yeah, to ignite that rocket, it takes huge amount of energy, huge. तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे सामर्थ्य की जरूरत होती है। If you just stand where, अगर किसी ने rocket launch देखा होगा ना, the station where they are and where the rocket launch is usually 4-5 किलोमीटर का difference होता है, I think so. Yes, yes. Yeah. The reason is that because when it is going up, it gives or throws away so much energy that the surrounding is almost burned, or even if a man goes there, his bones or ashes might not even be seen. Yes, वो रॉकेट जो ऊपर जाता है तो वो जल रहा होता है नीचे से, तो इतनी ज़्यादा आग और शक्ति वो नीचे फेंक रहा होता है कि अगर कोई इंसान वहाँ पे हो तो वो जल के राख हो जाएगा। Yeah. And when you look at the rocket, in a few seconds it is able to cover distance from 0 to 1000 or whatever the distance is, but in few seconds. तो लेकिन जब वो रॉकेट उड़ता है तो देखता है वो कितने सामर्थ्य से जाता है, कितनी तेजी से जाता है कि 0 से लेके हजारों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार कितनी जल्दी पकड़ लेता है वो। That is what the word exceeding means. इसी का अर्थ है विशाल, महान। I am very close, but not very close also, but I just want to give a rough example, but that's what the word exceeding means, like far beyond. मैं इसको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना ही मैं उसके पास जा सकता हूँ, लेकिन यही शब्द है जिसका अर्थ है विशाल, महान। And the word greatness. और जो शब्द है महानता। Now the second word, we looked at word exceeding, now we are looking at word greatness. पहले हमने देखा विशाल, फिर हम देखेंगे शब्द महानता। Now greatness, if you look at the Greek, it means megathos, mega, from where we get the English word magnitude, mega. तो हम यहाँ पे आके जो शब्द अंग्रेजी में मिलता है हमें, मैग्नीट्यूड, मेगा, मतलब विशाल, महान, वो शब्द है। It means greatness. इसका अर्थ है महानता। Mega means something which is so huge कि it is not possible to describe. महान, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ ये है कि इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसको हम समझा नहीं पाएंगे। Basically it means all the universes. There are so many galaxies in the world, right? इसका अर्थ है कि बहुत जितने सारे ब्रह्मांड है,
बहुत all सारे of- ब्रह्मांड है, yeah, हाँ. all of that together also cannot compromise of this word called greatness. तो इतने सारे ब्रह्मांड मिलकर भी ये शब्द के बराबर नहीं आ सकते, विशाल, महान. And the third word is power. और तीसरा शब्द है सामर्थ. The word power in Greek means dunamis, जो dynamite. यूनानी भाषा में जो ये शब्द इस्तेमाल किया है उसका वो शब्द है डुनामिस. Yeah. Have you ever seen a nuclear bomb या atom bomb किसने पकड़ा है? क्या किसी ने अणु बॉम्ब जो होता है वो पकड़ा है? टीवी में कभी देखा है? टीवी पे देखा है. I have seen this video when America had struck down Nagasaki, Hiroshima in the World War Yes. on a history channel, and the kind of impact it had. In few seconds, the entire place was barren, and even until now, people cannot live there, and no vegetation can grow there. That was the impact which happened nearly 7-8 years back. दूसरे महायुद्ध में जब अमेरिका ने बम डाला था जापान के 2 शहरों पे, वो इतना ज़्यादा तबाही हुआ वहाँ पे कि आज तक वहाँ पे कुछ ठीक से उग नहीं पाता है, ठीक से कोई जी नहीं पा रहा है. इतना ज़्यादा, आज 70 से 80 साल हो गए उस बात को, लेकिन फिर भी आज भी उसका जो उस पे जो असर हुआ है वो अभी तक कायम है. Now imagine that kind of impact is what we call huge. अगर उस परिणाम को अगर हम बड़ा कहते हैं, Then guess what? That power which was produced by that nuclear bomb is not even 0.1% of what this word power means. वो जो बम था उससे जितनी सामर्थ निकली थी, वो यहाँ पे जो सामर्थ की बात हो रही है उसके 1% भी नहीं था. You see, when we use the name of Jesus, guys, जब हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं in spiritual realm, आत्मिक जगत में, entire heaven, सारा स्वर्ग, entire hell, सारा नरक, entire earth, सारी पृथ्वी, they actually bow down, whether you believe it or not. वो झुक जाते हैं. I'm telling you the truth. We might just use the name of Jesus the way it is, हम शायद यीशु का नाम ऐसे ही बोल देते हैं, not knowing what is behind him. हमें शायद अंदाजा भी नहीं कि उसके पीछे कितना सामर्थ है. But in लेकिन- spiritual realm, लेकिन आत्मिक जगत में Bible says his name is above each and every other name. वचन कहता है कि उसका जो नाम है वो हर नाम के ऊपर है. Look at this word, verse 20. हम 20 वचन में जाएंगे. Verse 21. 21वें वचन में हम देखेंगे, Far above all principalities and power and might and dominion, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के, and every name that is named not only in this world but also in that which is to come. और हर नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा. And hath put all things under his feet. और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया. I just want to pause here for a bit. यहाँ पे हम रुक जाएंगे. It says, far above all principalities. ये कहता है कि हर एक सामर्थ, हर एक शक्ति के ऊपर, Far above all power. हर एक सामर्थ के ऊपर, Far above all dominion. हर एक प्रभुता के ऊपर The name of Jesus stands high. यीशु का नाम सबसे ऊपर है. Now guess what? और देखिए, This name of Jesus ये यीशु का नाम was given for you and for me and for all the people and for all the believers and for the church who believes in his name. और ये नाम हम सब के लिए दिया गया था, हमारे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, जो भी विश्वास करता है मसीह में. You know, the name or the person who stands behind the name. So usually what happens, I'll tell you. Let's talk about practical life in India, है ना? India में right now who has the most powerful name? हम उदाहरण के तौर पे देखें कि भारत में सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार है? Anyone? Who has a decision to make or break decisions instantly in India? अगर रोड पे कुछ करना है, who has the authority? Overall India. भारत में ऐसा कौन है जो एक बात में पूरा निर्णय बदल सकता है, ले सकता है? Prime Minister? प्रधानमंत्री. Correct? मान लो if Prime Minister comes here, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं, okay, and let's say you are associated with the Prime Minister, और कल्पना कीजिए कि आप प्रधानमंत्री के करीब वाले कोई हो, okay, you go to one shop, आप एक दुकान में जाते हो भैया मुझे ये देना, कि भैया मुझे चाहिए, आई वांट he gives समथिंग, you that thing, वो आपको चीज़ दे देंगे. okay, पैसा,
and then he'll ask for money. मैं मोदी का भाई हूँ. Huh? Yes, I'll say I'm Modi's brother. What's going to happen? क्या होगा? That guy might not even take money from you. Logically speaking, वो of आपसे course, वो पैसा भी लेगा. नहीं लेगा क्योंकि उसको पता है आप कौन हो. But logically speaking, he might not even take money and he might bow down in respect to you. Am I right or wrong? Yes, वो आपसे पैसा भी नहीं लेगा और शायद आपकी बहुत इज्जत करेगा Because he knows who is behind you क्योंकि आपको उसको पता है कि आपके पीछे कौन है or who is associated with you. और या फिर आप किसके साथ हो. Yeah? Now, tell me, folks, when we were born again in the body of Christ, तो आप बताइए कि जब हम मसीह के अंदर नया जन्म पाते हैं, Jesus made us his very own. यीशु ने हमें खुद का अपना बना लिया. He gave us his name. उसने हमें खुद का नाम दे दिया. Getting his name is not easy. उसका नाम पाना आसान नहीं है. Even the angels did not get that. जो स्वर्गदूत हैं उनके पास भी वो नाम नहीं है. Yeah? Bible says that when we got the name of Jesus, वचन कहता है जब हम यीशु का नाम लेते हैं, we did not just get the name for healing or for just for whatever our basic needs is. हमें वो नाम सिर्फ चंगाई के लिए या छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए नहीं दिया गया है. That name gives us basically everything, or it gives us sustenance over each and everything in this life. वो नाम हमें जीवन में सब कुछ देता है, जिसकी भी हमें ज़रूरत है सारी चीज़ों को हमें दे देता है. Yeah, that same name, वही नाम, the demons are subject, it says Bible. वो नाम के बारे में कहा गया है कि जो दुरात्मा है उस नाम के आगे झुकते हैं. But the problem is, लेकिन ये समस्या है, the devil wants to keep this hidden thing from us or from the church. शैतान चाहता है कि ये बात हमसे छुपाई जाए, हमें पता नहीं चले. There is this, there was this test, I would say this was a story about one woman. ये कहानी है एक स्त्री के बारे में, सच्ची कहानी. Okay, there was one very rich woman in England. इंग्लैंड में एक बहुत अमीर स्त्री थी. Very rich. She was the second richest after the Queen of England. वो जो इंग्लैंड की रानी है उनके बाद सबसे ज़्यादा अमीर वही थी. And she had one maid, और नौकरानी, उसकी एक नौकरानी थी who served her for nearly 40 years. जिसने उनकी सेवा की 40 साल तक. And she was so happy with this maid. और उस नौकरानी से वो बहुत खुश थी. What happens is when this lady is about to die, the rich lady is about to die, और जब ये अमीर स्त्री मरने वाली थी, she made a will. उन्होंने एक वसीयत बनाई. Okay, in the will, she had sons and she had daughters. उनके खुद के बेटे थे, बेटियां थी. But in this will, she mentioned that everything should go to this maid who has been taking care of her all these years. और उन्होंने उस वसीयत में लिखा कि मेरी जितनी भी दौलत है वो इस नौकरानी को दी जाए जिन्होंने मेरी सेवा की है. Now the problem was this maid was not educated and she did not know anything to read and write. और एक दिक्कत ये थी कि ये जो नौकरानी है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी. So when this will was made, it was folded in one envelope and it was given to this maid after the death. और ये जो वसीयत थी वो एक लिफाफे में डाल के इस नौकरानी को दी गई थी जब उनकी मालकिन का देहांत हुआ. People asked her, जो लोगों ने उनसे पूछा, people asked the maid, why don't you open this envelope and read what is there inside? उन्होंने पूछा, लोगों ने उनसे पूछा कि ये जो वसीयत है, जो लिफाफा है उसके अंदर क्या है, आप पढ़ क्यों लेते उसे. She said, this is the last thing that was given to me by my owner or master, or I want to keep this very close to my heart. I don't even want to open what is there inside. वो कहती है कि ये जो मेरी मालकिन की आखिरी निशानी है, आखिरी तोहफा है उन्होंने दिया है, तो मैं उसे अपने दिल से लगा के रखना चाहती हूँ, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहती. And this happened nearly 10 times. Every month someone or the other used to see that envelope kept in one golden treasury bowl. और वो बहुत लोग उसके घर जाते हुए देखते थे कि ये जो लिफाफा है बहुत अच्छे से सुनहरे कुछ बक्से में रखा है उन्होंने. And nobody is opening it. और कोई उसे पढ़ नहीं रहा है, खोल ही नहीं रहा है. Years goes by, 70 years goes by. 70 साल बीत गए. And this now maid is about to die and she's on a last will. और ये अब जो नौकरानी है वो मरने वाली है. So before she dies, she says, okay, all these years I have not listened to you guys. Now let me do one thing. I will listen to you now. और जो नौकरानी वो कहते इतने सालों से तुम कह रहे थे पढ़ो पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा, अभी मैं
पढ़ना चाहती हूँ इससे। So then because she doesn't know to read and write, she asked someone else to open it. क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था, उसने किसी और को पढ़ने के लिए कहा। And one more thing I want to add. और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, All these 70 years, this person was still working for some other houses. और ये 70 साल तक ये जो नौकरानी थी वो दूसरे घरों में नौकरानी का ही काम कर रही थी। So when she was about to open the letter and someone was reading it, जब कोई वो लिफाफा खोल के पढ़ रहा था, it was, so the first line was written, पहला जो लाइन था वो लिखा था "Thank you so much, Margaret. I love you so much. कि मार्गरेट धन्यवाद, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, You have been taking care for me for all these years. तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा And I want to leave a small gift for you." और मैं तुम्हें एक छोटा तोहफा देना चाहती हूँ। And the first thing of the gift was the entire mansion. और पहला तोहफा है ये पूरा महल जो है वो तेरा है। Second thing is, I have got a bank balance which is something which is in billions, and all this has been given for you. और दूसरा जो है मेरा बैंक बैलेंस जो अरबों पैसे है, मतलब पाउंड होंगे, तो Pounds. वो मैं तुझे दे देती हूँ। From now, whatever other servants are there in this house, they will directly report to you. और आज से जितने भी नौकर है घर में वो तेरे नौकर बनेंगे। And whatever other businesses that I have, you're going to be the owner of all these other और businesses. जितने भी मेरे बिजनेसेस है उन सब की मालकिन तू बनेगी। At the end of the day, and at the end of the letter, she starts crying. और जब वो जो लेटर है वो ख़त्म होने आता है तो वो रोने लगती है। And she thinks to herself and asks herself, और जब वो सोचती है और खुद को पूछती है how foolish and stupid I have been. कि मैं कितनी मूर्ख बनी रही, When God gave me everything, कि परमेश्वर ने मुझे सब दे दिया है, I still worked and I slaved like anything for 70 years. मैंने फिर भी 70 साल तक गुलामों की तरह दूसरों की सेवा करती रही। Yeah, when I was the owner of the house, जबकि मैं घर की मालकिन हूँ and people were reporting to me, और जो लोग मेरे नौकर थे, but because I did not know and because of my ignorance, I worked like a slave for someone else. और क्योंकि मेरे अज्ञान के कारण मैं फिर भी दूसरों के घरों में नौकर का ही काम कर रही थी। Guys, I want to tell you one thing. What Jesus has done for us on the cross is far greater than any man could ever do. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यीशु ने जो हमारे लिए किया है, जो वो किसी इंसान भी किसी के लिए नहीं कर पाएगा। Jesus has made us his very own, and we are his righteousness of God in Christ Jesus. यीशु ने हमें उसकी धार्मिकता बनाया है और उसका खुद का बना लिया है। Bible says we are seated with him, and I'm telling you folks, the entire spiritual realm, the demons of hell, everything bows to the name of Jesus and they are afraid of you. वचन कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं और जो भी दुरात्मा यीशु के नाम से डरते हैं वो आपसे भी डरते हैं। But this is the truth that the devil wants to hide from each and every children of लेकिन God. ये सच्चाई शैतान हर एक मसीह व्यक्ति से छुपाना चाहता है। We should not be ignorant. लेकिन हमें अज्ञान में नहीं रहना है। Bible says because of the lack of the word, because of the lack of knowledge, my people are perishing. वचन कहता है कि मेरे वचन के ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। God has given us a far greater name, and that power that lies behind the name of Jesus that belongs to us. लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु का नाम दिया है और उस नाम के पीछे बहुत बड़ी सामर्थ है। When we lay hands on the sick, जब हम बीमारों पे हाथ रखते in the हैं, name of Jesus, sickness goes away. यीशु के नाम में बीमारी चली जाती है। Yeah. When we cast out devils in the name of Jesus, जब यीशु के नाम से हम दुरात्मा भगाते हैं, the demons have to leave. दुरात्माओं को भागना पड़ता है। Yeah. So let us just close our eyes and let us just acknowledge the name of Jesus. तो हम हमारी आंखों को बंद करके यीशु के नाम को स्वीकारेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, पिता, we are grateful. थैंक यू लॉर्ड। We are grateful for all the sacrifice that you have made for us on the cross. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर किया, Because this sacrifice was made once and for all. क्योंकि यह बलिदान एक ही बार किया गया सभी के लिए। And in this sacrifice, you gave us the entire heaven and entire kingdom, and you gave us that very name of Jesus. और ये इसी बलिदान में आपने हमें पूरा स्वर्ग, पूरी पृथ्वी दे दी है यीशु के नाम में, So that we may reign in life, ताकि हम जीवन में राज्य करें, so that we might be victorious over everything. ताकि हम विजयशाली जीवन जिए। Because, Father, no sickness, क्योंकि पिता कोई भी बीमारी, no poverty, कोई भी गरीबी, no lack कोई भी कमी
can ever, कभी भी, can never कभी भी come upon the children of God. प्रभु के बच्चों पे नहीं आ सकती। And Lord, help us to take our stand and our authority, प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम हमारे अधिकार को लेके खड़े रहे and help us, Lord, और to मदद करें, and help us, Lord, to go deep and to meditate on your word. और हमें मदद कीजिए पिता ताकि हम आपके वचन पे मनन करके गहराई में जाए। We thank you for this bread and for this wine that you have given us, Father. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस रोटी के लिए और एक दाखरस के लिए, Because this is your very own body, क्योंकि आपका खुद का शरीर है प्रभु, which was broken down for us on the ताकि cross. वो जो हमारे लिए तोड़ा गया था। And Lord, your word says that by your stripes we were already healed. और प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके खाए कोड़ों से हम चंगे हो चुके हैं। And your word says by the blood of Jesus we have already been redeemed. और आपका वचन कहता है कि आपके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हो चुका है। So Father, इसलिए पिता we thank you हम धन्यवाद करते हैं because we belong to you, Jesus. कि हम आपके हैं प्रभु यीशु, And that you will never leave us, ताकि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, neither will you ever forsake us. आप कभी हमें त्यागोगे नहीं। For your promises are always yes and amen. आपका जो वादा है वो हमेशा हाँ और आमीन होता है। And your word says, Lord, और आपका वचन कहता है प्रभु that he who knows their God shall carry out great exploits. आपका वचन कहता है प्रभु ऐसे लोग जो अपने प्रभु को जानते हैं वो बहुत बड़े पराक्रम करेंगे। So Lord, I pray for each and every one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, Help us to realize, acknowledge you each and every single day of our lives. मदद कीजिए प्रभु कि हम आपको जानने पाए, हम आपको पहचाने हर एक दिन, And help us to live a victorious life और every हमें- single day. और हमें मदद कीजिए कि हम हर एक दिन विजयशाली जीवन जिए। In Jesus' name, Father. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, Amen. आमीन। Let's have this. थैंक यू जीसस। Amen. जय मसीह की सभी को। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका स्वागत है और हम सैम ब्रदर और अमीश ब्रदर को धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए। हम आगे की सभा बढ़ाते हैं और सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे पास्टर जी गणेश अंकल को इनवाइट करती हूँ, तो एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। What a blessed day we are all in this blessed day. कितना आनंदित यह दिन है कि हम इस आशीर्वादित दिन में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। Every day God creates new for us. रोज परमेश्वर नया दिन हमारे लिए बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। That we should rejoice in every day. कि हम हर एक दिन में आनंद करें। Hallelujah. हालेलुया। It is a blessing when we are rejoicing in the Lord. ये एक आशीर्वाद है कि हम परमेश्वर में हम आनंद करते हैं। Because in the world you have trouble. क्योंकि संसार में हमें दुख होगा, But in the Lord we have joy unspeakable and full of glory. लेकिन परमेश्वर में हमें आनंद होगा जिसको हम बयान नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। So it is up to us whether you want to rejoice in the Lord or you want to sad in the world. तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें आनंद करना है या दुनिया के साथ में दुख मनाना है। God gave me a word today तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया regarding tongue. अन्य भाषा के विषय में, No, जीभ के विषय में। And last week onwards I was just meditating on this scripture. और पिछले एक हफ्ते से मैं इस पर मनन कर रहा था। We'll come to James chapter number 3. तो हम आएंगे याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय, And from verse 1 onwards we will read. और पहले वचन से हम पढ़ेंगे याकूब 3 उसका पहले वचन से। Here it says, My brethren, let not many of you become teachers,
knowing that we shall receive a stricter judgment. याकूब 3 उसका पहला वचन, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. Hallelujah. हालेलुया. So, James very clearly says that, my brethren, let not many of you become teachers. तो याकूब यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि तुम में से बहुत लोग उपदेशक न बनो. Why? Knowing this, that we shall receive a stricter judgment. क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. Hallelujah. हालेलुया. And the second verse says, और दूसरा वचन कहता है, for we all stumble in many things. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. If anyone does not stumble in word, जो कोई वचन में नहीं चूकता he is a perfect man, वही तो सिद्ध मनुष्य है, able also to bridle the whole body. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. God has called everyone to preach the gospel. तो परमेश्वर ने हम सबको उसका जो सुसमाचार है उसका प्रचार करने के लिए बुलाया है. First, we have to become his disciple. तो पहले हमें उसका शिष्य बनना है. If we are not becoming his disciple, और अगर हम उसका शिष्य नहीं बन रहे हैं we cannot be a good teacher to others. तो हम दूसरों के लिए अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते. Here in the verse 2 we read, we all stumble in many things. और वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. But if anyone does not stumble in the word, जो कोई वचन में नहीं चूकता he is a perfect man, वही तो सिद्ध मनुष्य है, and he is able to bridle the whole body. और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Only on the pulpit we should not teach or preach. तो केवल मंच पर हमने शिक्षा देनी नहीं चाहिए और केवल प्रचार केवल मंच से ही नहीं करना चाहिए. Our life is a preaching to others. लेकिन हमारा जीवन एक शिक्षा होना चाहिए दूसरों के लिए. Hallelujah. हालेलुया. Because Christ is living inside of us, क्योंकि मसीह यीशु हमारे अंदर रहता है and he wants to manifest himself through us. और वो हमारे द्वारा इस दुनिया में प्रकट होना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया. So our goal, our focus should be on the one who loves us. तो इसीलिए हमारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए जो हमसे प्रेम करता है. Because our life speaks a lot. क्योंकि हमारा जीवन बहुत कुछ बताता है. One verse you might have heard, one phrase, action speaks louder than voice. तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो आपके काम है वो आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा दिखाता है. आपके आपके बोलने बोल से, से ज्यादा आपके काम दिखाते हैं. हालेलुया, हालेलुया. है ना, हमारे बोलने से ज्यादा हम जो काम करते हैं वो ज्यादा बात करता है. So the action that you do, it speaks louder than the words that you speak. हालेलुया, हालेलुया. है ना. What we are doing, actually we are speaking, we are teaching others. तो जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे जो बातों के हमारा जो बर्ताव है उसके द्वारा हमारे शब्द से ज्यादा बेहतर हमारा बर्ताव होता है. If we come to verse 13, अगर हम वचन 13 की ओर आएंगे, here it reads like this: Who is wise and understanding among you? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? Question mark. क्वेश्चन मार्क. Who is wise and understanding among you? कौन तुम में बुद्धिमान है, समझदार कौन है? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है. Hallelujah. हालेलुया. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that works that are done in meekness of wisdom. तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है. When Christ is manifested through our lives, तो जब मसीह हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है people learn a lot. तो लोग बहुत कुछ सीखते हैं. And you do not have to preach them, you do not have to teach them. तो उस समय आपको उनको प्रचार करने की या शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती. Your walk with Christ will teach many things to others. तो आपका जो जीवन मसीह यीशु के साथ आप जो चल रहे हो उसके द्वारा लोग वो जीवन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है. Your good conduct will teach many things to others. आपका अच्छा बर्ताव लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता है. Hallelujah. हालेलुया. How you use your tongue, that teaches a lot to others. आप आपकी जीभ को कैसा उसका इस्तेमाल करते हो वो बहुत सारी चीजें लोगों को सिखाता है. One more scripture will come, one more verse we will come here और एक वचन हम खोलेंगे about the tongue only.
जीभ के बारे में। 7 from verse 7. For every kind of beast and bird, of reptile and creature of sea is tamed and has been tamed by mankind. याकूब 3 उसका 7, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। But no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। The tongue, Bible says, is a fire. वचन कहता है कि जो जीभ है वो आग है। It is unruly evil, वो दुष्टता से भरी हुई है full of deadly poison. और प्राणनाशक विष से भरी हुई है। And no man can tame the tongue. और उसको कोई मनुष्य उसको वश में नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Is it applicable to a born again child of the living God? क्या ये जो नया जीवन पाए हुए परमेश्वर के बच्चों के लिए है क्या? This word is not applicable to those people who are born of God. ये उनके लिए नहीं है जिनका जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है। The people who do not know God, their tongue is not in their control. जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनकी जीभ उनके वश में नहीं होती है। The tongue rules their life. उनकी जो जीभ है वो उनके जीवन पर कब्जा करके रखती है। Hallelujah. हालेलुया। But we, as a born again children of the Most High God, we have dominion over our tongue. लेकिन जो हम हैं जो परमेश्वर से जन्मे हुए हैं हमारा उस जीभ पे कब्जा है, वश है। Hallelujah. हालेलुया। By the power of the Holy Ghost, we can control our tongue. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम हमारे जीभ पर नियंत्रण रख सकते हैं। Our emotions will not drive our tongue. हमारी जो भावना है वो भावना हमारी जीभ को कंट्रोल में नहीं रख सकती। The situations that are coming, the challenges that are coming in our life, it will not drive our tongue. तो जो परिस्थिति है जो जीवन में चल रहा है वो हमारे जीभ से क्या बोलना है वो नियंत्रित नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया। If you believe this, say amen. अगर आप विश्वास करते हो तो कहिए आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Because we have the power of the Holy Ghost residing inside of us. क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। And we can decide when to talk and when to stop. और हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हमें कब बोलना है और हमें कब नहीं बोलना। Hallelujah. Hallelujah. Because we have the power of the Holy Ghost. क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। We should know how to use our tongue. तो हमें जानना है कि हमारे जीभ को हमें कैसे इस्तेमाल में लाना है। Hallelujah. हालेलुया। Our tongue should not be used by the devil. हमारी जीभ का इस्तेमाल शैतान ने नहीं करना है। Today many believers, so-called believers, they are in the world, but their tongues are used by the demons. आज बहुत से विश्वासी है, नाम के लिए विश्वासी है, लेकिन उनका जो जीभ है वो शैतान इस्तेमाल करता है। Hallelujah. Hallelujah. This is so sad. ये काफी दुख भरी बात है। When I was not in the world, when I was not in the Lord, जब मैं परमेश्वर में नहीं था, now I'm not in the world. अभी मैं संसार में नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My tongue was literally used by the devil. तो जब मैं संसार में था उस समय मेरे जीभ का इस्तेमाल शैतान करता था। I used to invent evil words with my tongue. और मैं मेरी जीभ से नई जो दुष्ट की बातें हैं उनको इन्वेंट करता था। And I used to use them in every sentence. और उसका इस्तेमाल मैं हर एक वाक्य में करता था। And that destroyed my life. और उसने मेरे जीवन का नाश किया। Hallelujah. हालेलुया। I was not knowing anything about it. मुझे उस समय उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। The devil was using my tongue. शैतान उस समय मेरी जीभ का वो इस्तेमाल कर रहा था। And I was eating the fruit of that, whatever I was speaking. और मैं जो कुछ बोल रहा था उसके फलों को मैं उस समय उसको फलों को खा रहा था। My life was totally miserable. मेरा जीवन काफी बुरा था उस समय। Hallelujah. हालेलुया। But the day I got born again, लेकिन जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, hallelujah, हालेलुया, the devil left me. तो शैतान दुष्ट मुझे छोड़कर चला गया। Hallelujah. Hallelujah. And Holy Ghost took control of my tongue. और पवित्र आत्मा ने मेरी जीभ पर कब्जा लिया। Hallelujah. हालेलुया। Since then I never invented or created any evil word.
और उसके बाद से मैंने कोई भी दुष्ट की बातों का आविष्कार नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया, The Holy Ghost will give you the word of life. आमेन। पवित्र आत्मा आपको जीवन के शब्द देंगे। Hallelujah. हालेलुया। So where you focus your heart and mind, where you set your heart and mind, तो जहां कहीं आप आपका मन को आपके हृदय को आप लगाओगे, your mouth will speak about those things. तो आपका मुख उन चीजों के बारे में बोलेगा जिन पर आप ध्यान लगाते हो। Hallelujah. हालेलुया। If your mind and heart is set in the world, अगर आपका मन आपका हृदय संसार में लगा है, you will speak the things of the world. तो उस समय तब आप उस संसार के शब्दों का बोलोगे। Hallelujah. हालेलुया। But if your heart and mind is set on the Lord God who loves you, लेकिन अगर आपका हृदय आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है जो आपसे प्रेम करता है, your mouth will speak about him. आपका मुख उसके बारे में बोलेगा, Your mouth will glorify him. आपका मुख उसके महिमा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God has given us this tongue to bless everyone. परमेश्वर ने हमें ये मुख दिया कि हम लोगों को आशीर्वादित करें। We should not curse anyone हम किसी को शाप ना दे, because all are created in the image of God. क्योंकि हम में से हर एक जन परमेश्वर के रूप में उसके समानता में बनाया गया है। We should not curse any human being. हमें किसी को भी शाप नहीं देना है। Hallelujah. Hallelujah. Whether he's a believer, whether he's an unbeliever, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, we should bless everyone. हमने सबको आशीषित करना है। Hallelujah. हालेलुया। This knowledge will come in us when we are growing and meditating on the word of God. तो ये ज्ञान हमें तब आएगा जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उसके वचन पर हम मनन कर रहे हैं। See, we have got 24 hours in a day. तो देखिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, How much time we are giving to the Lord? तो उसमें से हम कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So when we are giving ourselves to the Lord, we are receiving from the Lord. तो जब हम खुद को परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। We receive the truth. We receive everything that we need for this life. तो हम सत्य को ग्रहण करते हैं, हम वो सारी चीजें ग्रहण करते हैं जो हमें इस जीवन के लिए चाहिए। And our heart will be filled with all the goodness of God. और हमारा हृदय परमेश्वर की भलाई से भर जाएगा, And with the reverence of God. और उसके प्रति जो सम्मान है उससे भर जाएगा, And we will speak those things. और हम वो चीजें बोलेंगे। Because Bible says out of the abundance of the heart the mouth speaks. क्योंकि वचन कहता है कि मन में जो मन में भरा हुआ है उसके द्वारा मुख बोलता है। Hallelujah. Hallelujah. We should allow the word of God to take root and deep root in our heart. तो हमें ये परवानगी देनी है कि परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर वो अधिकाई से बसने देना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. If the word of God has taken root in your heart, it will grow and it will become fruitful in your life. अगर आपने परमेश्वर के वचन को आपके अंदर भरने दिया है, जड़ें पकड़ने दी है, तो आपके अंदर से वो फलों को लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। But if you allow the cares of this life and the deceitfulness of the riches to enter your heart, it will choke the word. लेकिन अगर आप इस संसार की बातों को, इस संसार के प्रश्नों को आपके अंदर आने दोगे तो वो परमेश्वर के वचन को दबा देगा। Then your tongue will not be in the control of the Holy Spirit. और उसके बाद आपका जो जीभ है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं रहेगी। You will talk as the world talks. तो आप वैसे बात करोगे जैसे संसार बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। The situation comes and your tongue will be very active to respond to the situation. तो जो कुछ परिस्थिति आती है तब आपकी जीभ उस परिस्थिति के ऊपर बोलने के लिए आतुर रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। But when you are meditating on the word of God day and night, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते हो, whatever challenges comes to you, तो जो कुछ परिस्थिति आपके सामने आती है, you'll speak the word of God आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे and you will make a way through it. और आप उसमें से रास्ते को निकालोगे। Because Bible says we are more than conquerors in Christ Jesus. क्योंकि वचन कहता है कि हम मसीह यीशु में महाविजयी है। Hallelujah. हालेलुया। We cannot be defeated. हम हार नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। Because God, the creator of the entire universe, is living inside of us. क्योंकि सृष्टि का बनने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So we should use our words carefully. तो हमें हमारे शब्दों को ध्यान देकर उसका इस्तेमाल करना है। Because Bible says in Proverbs 10:19, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 19वां वचन, in the multitude of words sin is not lacking, बहुत सारे शब्दों में पाप छुपा नहीं रहता। but he who restrains his lips is wise. 10:19 10:19. नीति वचन 10 उसका 19,
जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। When you're focused on the Lord and you're meditating on the word of God, huh. तो जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करते हो, उसके वचन पर आप मनन करते हो, the one thing that happens to you that you become very silent. तो एक चीज जो होती है वो होती है कि आप शांत हो जाते हो। You will not feel like talking to anyone. तो आपको ये नहीं लगता कि आपने किसी से ज्यादा बात करनी है। And whenever it is required, you will open your mouth and then you will talk. और जब जरूरत है आप तभी अपने मुख को खोलोगे और आप कुछ बोलोगे। Hallelujah. हालेलुया। है ना? In the multitude of the words, sin is not lacking, Bible says. तो यहाँ वचन कहता है कि जहाँ बहुत सारी बातें होती है, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, वहां पर अपराध भी होता है। So our words should be few. तो हमारे शब्द कम होने चाहिए। Bible says, be swift to hear and slow to speak. तो वचन कहता है कि सुनने में तुम ज्यादा तत्पर रहो और बोलना ज्यादा बोलो मत। Hallelujah. हालेलुया। So our words should be very few तो हमारे शब्द है वो कम होने चाहिए, because our life speaks a lot. क्योंकि हमारा जीवन ज्यादा बोलता है। Our conduct speaks a lot. हमारा जो बर्ताव है वो ज्यादा बोलता है। Our action speaks a lot. जो हमारी कृति है वो ज्यादा बोलती है। That's why our words should be few. इसलिए हमारे शब्द थोड़े होने चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So we as a sons of the living God, तो हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं, we can tame our tongue. हम हमारे जीभ को वश में ला सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Emotions will not drive our tongue. भावना जो है वो हमारे जीभ को नियंत्रित नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया। If it is so, अगर ऐसा होता है then you are a perfect man. तो वचन कहता है कि तब आप सिद्ध मनुष्य हो, Then able to bridle your whole body. और उसके बाद आपके पूरे शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हो। You can control your emotions. आप अपनी भावना को नियंत्रित कर सकते You हो। can control your anger. आप आपके गुस्से को नियंत्रित कर सकते हो। You can control everything. आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। Your body you can control. आपके शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हो। Your hunger, everything. आपके भूख को आप नियंत्रित कर सकते हो। Your desires. आपकी इच्छा को, सब चीजों को। Hallelujah. हालेलुया। Because the word of God will empower you to do so. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देगा ये सारी चीजें करने के लिए। Holy Spirit is there to help you to use your tongue rightly. आप पवित्र आत्मा है जो आपको बताएगा, आपको सिखाएगा कि आपको आपकी जीभ को सही रूप से कैसे इस्तेमाल करना है। Hallelujah. हालेलुया। There are many people who want to become teachers, बहुत सारे लोग हैं जो उपदेशक, जो प्रचारक बनना चाहते हैं, but they are not able to bridle their tongue. लेकिन वो उनके जीभ पर नियंत्रण नहीं लगा सकते। So it will be a bad example. तो वो एक बुरा उदाहरण होगा। And another scripture we will read, और एक हम वचन पढ़ेंगे, Hebrews chapter number 5 and verse 12. इब्रानियों उसका 5:12. 5वां अध्याय उसका 12वां वचन। इब्रानियों 5 उसका 12। 5:12. इब्रानियों 5:12। Here it reads like this: For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need of milk and not solid food. इब्रानियों 5 उसका 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। There are so many believers years together, they are coming to churches, and every Sunday they are coming, but still they are not able to teach others. तो बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो सालों से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों से चर्च में आने के बावजूद वो लोगों को वचन की शिक्षा नहीं दे पाते। Hallelujah. हालेलुया। They need to learn from others. और उनको ऐसा होता है कि वो दूसरों से ही सीखना चाहते हैं, है ना? The Bible says that, and you have come to need of milk and not solid food. वचन कह रहा है कि तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अभी भी अन्न नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें दूध ही चाहिए। There is difference between milk and solid food. तो एक डिफरेंस है दूध में और अन्न में। Milk is for little children. जो दूध है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। How long you will be a little children like? तो तुम कितने दिन तक छोटे बच्चों के समान रहोगे? And what is milk? और दूध क्या है? Papa God loves you. Papa God loves you. हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Don't worry. चिंता मत करो, Don't cry. रो मत। Papa God will take care of you. जो परमेश्वर पिता है वो आपकी सुधि लेगा। Hallelujah. हालेलुया। What is solid food? और जो अन्न क्या है?
For Christ you are suffering, and in the jail you are praising the Lord. कि मसीह के लिए आप परेशानियों में से जा रहे हो और उसके लिए आप तकलीफें उठा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Paul and Silas, they were in the prison and they were praising the Lord. जो पौल और सिलास है वो जेल में थे, फिर भी वहां पर वो परमेश्वर की वो स्तुति कर रहे थे। Why? They were not feeding on milk, they were eating the solid food of the word of God. क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं पी रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का अन्न खा रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. Those who only feed on the milk of the word of God, they will always look for God, what you can do for me. और जो कोई सिर्फ वचन में से दूध को ही पी रहा है, वो केवल परमेश्वर को देखेंगे कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। The milk drinking believers only will seek from the Lord. जो दूध पीने वाले विश्वासी है वो परमेश्वर से केवल देखेंगे कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा। Hallelujah. Hallelujah. But the solid food eater believers, लेकिन जो अन्न जो खाते हैं, जो विश्वासी जो अन्न खाते हैं वचन का, they will say, Lord, what can I do for you? वो कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। Here I am, Lord. परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is the difference between milk and solid food. यही डिफरेंस है जो दूध पीने वाले और अन्न खाने वाले विश्वासी में। 13 verse says, वचन 13 कहता है, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness and is a babe. वचन 13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे की तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। Hallelujah. हालेलुया। Baby doesn't understand what is right and what is wrong. जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसको ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। Hallelujah. हालेलुया। So if you are only feeding on the milk, you do not know what is right and what is wrong. अगर केवल आप दूध पी रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। And often you end up in doing wrong only. और बहुत बार ऐसा होगा कि आप गलत ही करोगे। But 14th verse says, but solid food belongs to those who are of full age. वचन 14 कहता है, पर अन्न सयानों के लिए है। That is those who by reason of use their senses exercise to discern both good and evil. जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भरे बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। Hallelujah. Solid Hallelujah. food belongs to those who are able to discern what is good and what is evil. तो जो अन्न है वो उनके लिए जो समझ सकते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। We all start with the milk of the word of God. तो हम सब शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचन के दूध से। But there comes a time when we should start with solid food. लेकिन एक समय आता है, आना चाहिए, जब हमने अन्न खाना शुरू करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you eat solid food of the word of God, और अगर आप परमेश्वर के वचन का अन्न खाते हो you will never complain. तो आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। You will always glorify God. You will always be grateful to God. आप हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हृदय के रहोगे। Because deep inside of your heart, you know that God is real, and you know the conviction is there in your heart. क्योंकि आपके मन के अंदर आपको पता रहेगा कि परमेश्वर है, कोई तो जीवित परमेश्वर है, ऐसा आपको लगेगा अंदर से। You will not doubt. आप डाउट नहीं करोगे। Because that is deeply rooted in your heart that God is real and He is always with you. क्योंकि आपके हृदय के अंदर तक वो गया होगा कि परमेश्वर है, आपके वो अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why when circumstances or challenges comes in your life, you will respond in a different way. और इसके कारण ऐसा होगा कि जब कभी आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो आपका जो उसके प्रति जो प्रतिसाद है वो कुछ अलग होगा। Hallelujah. हालेलुया। So it is all our responsibility how we walk in this life. तो ये हमारा काम है कि हम जीवन में कैसे चलते हैं। Hallelujah. आमीन। So as sons of God, we should able to control our tongue. तो परमेश्वर के पुत्र के नाई ये हमारा कर्तव्य है कि हमको ये जानना है कि हमारे जीभ को हम वश में कैसे रखें। One more verse we will read. और एक वचन हम पढ़ेंगे, Ephesians 4:29. इफिसियों 4 उसका 29। Here it says, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearer. इफिसियों 4 उसका 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। Hallelujah. Hallelujah. Let no corrupt word come out of your mouth. कोई भी गंदी या कोई भी बुरी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। That means control is with you. उसका मतलब यह है कि नियंत्रण आपके पास है। Hallelujah. Hallelujah. God is not going to control our tongue.
परमेश्वर हमारी जीभ को नियंत्रित नहीं करेगा। Though we are born again, यद्यपि हमारा नया जन्म हुआ है, the Holy Spirit is there to help us to control our tongue. पवित्र आत्मा हमारे साथ में इसीलिए है कि वो हमारी सहायता करे कि हमारी जीभ को हम नियंत्रण में कैसे लाए। Hallelujah. हालेलुया। We can take the help of the Holy Spirit and train our tongue to control our tongue. तो हम पवित्र आत्मा की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी जीभ को हम कैसे नियंत्रण में लाए। Let no corrupt word proceed out of your mouth. कोई भी बुरी या कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। Hallelujah. हालेलुया। Because the word that is coming out of our mouth, it comes from the heart, Bible says. क्योंकि जो कुछ शब्द, जो कुछ बातें हमारे अंदर से निकल रही है वो हमारे मन से निकल रही है। What you are allowing in your heart, the things will come out of your mouth. तो जो कुछ आप परवानगी दे रहे हो चीजों को जो आपके अंदर जाए वही आपके अंदर से बाहर निकलेंगी। If you allow bitterness, hatred to come in your heart, your mouth will speak the same things out. तो अगर आप आपके परवानगी दे रहे हो कि जो बुरी बात है वो आपके अंदर जाए तो उसके वही चीजें आपके मुख से बाहर निकलेंगी। Hallelujah. हालेलुया। But if you allow the word of God day and night, if you meditate on it and if you receive the word in your heart, you will speak the word of God. तो अगर आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो, उसके बातों को आप अंदर ले रहे हो, तो वही चीजें फिर आपके जीभ से, आपके मुख से बाहर निकलेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Bible says in Luke chapter number 6 and verse 45, और लूका उसका 6वां अध्याय उसका वचन 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. और लूका उसका 6वां अध्याय उसका 45 वचन, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। For out of the abundance of the heart his mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। The day we got born again, we were born in righteousness and true holiness. और जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ उस दिन हमारा जन्म धार्मिकता में हुआ है। Hallelujah. So by default we have become good तो हम बाय डिफॉल्ट अच्छे बन गए हैं because of Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। And Bible says that a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. वचन कहता है कि जो भला मनुष्य है वो अपने मन में जो अच्छी चीजें भरी हुई है उसके द्वारा अच्छी चीजों को बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। So our heart is a good treasure. तो हमारा जो मन है वो अच्छा ट्रेजर है, भंडार है। So good things should come out of our mouth. तो अच्छी चीजें हमारे अंदर से, हमारे मुख से बाहर आनी चाहिए। We should speak blessing to our enemies. तो हमें हमारे जो दुश्मन है उस पर आशीष को बोलना है। We should not curse anyone. हमें किसी को श्राप नहीं देना है। Hallelujah. हालेलुया। We are called to bless. हमें बुलाया गया है आशीष देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The devil is already cursed. जो शैतान है वो पहले से ही श्रापित है। People who do evil, they are already cursed. जो लोग बुरे काम करता है वो पहले से ही श्रापित है। Hallelujah. हालेलुया। We are called to bless others. हमें बुलाया गया है कि हम दूसरों को आशीष दें। Hallelujah. हालेलुया। Because God has blessed us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। Jesus Christ became curse for us यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बनाए that we should become blessing of God. कि हम परमेश्वर का आशीष ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। So our speech should be seasoned with salt. तो हमारा जो जीभ है वो नमक के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वो नमक के द्वारा निकले। Colossians 4:6 says that. कुलस्सियों 6 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, Let your speech always be with grace. कुलस्सियों 4:6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। So we should learn all these things. तो हमें सारी चीजें सीखना है। These things are blessing to us. ये सारी चीजें हमारे लिए आशीष का कारण है। If our tongue is in our control, अगर हमारी जीभ हमारे नियंत्रण में है we can direct our future. तो हम हमारे जो भविष्य है उसको निर्धारित कर सकते हैं। We can create what we want. तो हम वो कुछ उस सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जो हमें चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। You can create your destiny.
आप आपकी जो डेस्टिनी है उसका आप निर्माण कर सकते हैं। With your tongue, you can speak the promises made to you by God. आप आपकी जीभ के द्वारा जो परमेश्वर के वचन है वो आप बोल सकते हो, And that will bring forth fruit in your life. और वो आपके जीवन में फलों को लेकर आएगा। Because every word that we bring out of our mouth, it is a seed. तो जो कुछ हम हमारे मुख से लेकर आते हैं वो एक बीज की तरह होता है, And we will, soon or later, we will eat the fruit of that seed. और आने वाले भविष्य में उस बोली हुई जो बीज है, जो बोया हुआ शब्द है, उसका हम फल खाएंगे। Hallelujah. If we control our tongue, many problems will vanish away from our life. अगर हम हमारे जीभ को नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत सारे जो तकलीफें हैं उनसे हम दूर हो सकते हैं। But the children, if you are only babe in the Lord, लेकिन अगर आप बच्चे के समान परमेश्वर में हो, your tongue will be very active for every challenge. तो उस समय आपकी जीभ जो है वो हर परिस्थिति पे बोलने के लिए तैयार रहेगी। Every now and then it will start speaking. हर कुछ समय में वो बोलना शुरू करेगी। In Proverbs 29:11, नीति वचन उसका 29 उसका 11, a fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. नीति वचन 29 उसका 11, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। A foolish person will always vent everything that he feels. जो मूर्ख है तो वो सब कुछ बोल देगा, उसको जो कुछ लग रहा है वो सब कुछ बोल देगा। That is like a childish behavior. तो वो एक बचकाना स्वभाव हो गया। But when you become wise, you will hold them back. लेकिन जब आप बुद्धिमान होते हो तो आपको क्या बोलना है उस पर आप नियंत्रण रखते हो। Hallelujah. हालेलुया। So, we are called that we should use our tongue to design our future. तो हमें बुलाया गया है कि हम हमारे जीभ को नियंत्रित करें और हमारा जो भविष्य उसका निर्माण करें। Because a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. क्योंकि वचन कहता है कि जो भला मनुष्य है उसके मन के भले भंडार से अच्छी चीजों को वो बोलता है। Speak life for you. अपने जीवन के लिए, खुद के लिए जीवन को बोले। Speak divine health for you. अपने लिए दैवीय आरोग्य को बोले। Speak divine prosperity for you. अपने लिए ईश्वरीय समृद्धि को बोले। Hallelujah. हालेलुया। But many people, they use their tongue to destroy their own life. लेकिन बहुत सारे लोग अपनी खुद की जीभ का इस्तेमाल करते हैं खुद के जीवन को नष्ट करने के लिए। They are irritated by challenges, by situations. जो परिस्थितियां उनसे इरिटेट होकर, And they speak the death out of their tongue. और अपने मुख से मृत्यु को बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This should not happen with us. ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So we should understand that we are born of God and the Holy Spirit is there inside of us. तो हमें जानना है कि हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Whatever the situation is before you, कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, nothing should drive your tongue. उनमें से कोई भी चीज ने आपके जीभ पर नियंत्रण नहीं लेना है। Hallelujah. Hallelujah. You should decide, I will open my mouth and I will speak what is right. हमने ये निर्णय लेना है कि मैं मेरा मुख खोलूंगा और जो सही है मैं वही बोलूंगा। Proverbs 13:3 says, he who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. नीति वचन 13 उसका 3 वचन, जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। है ना? If we keep guard over our mouth, अगर हम हमारे मुख की चौकसी करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, we preserve our life. तो हम हमारे प्राण की रक्षा करते हैं, हमारे जीवन की हम रक्षा करते हैं। But if our mouth is not in control, लेकिन हमारा अगर मुख हमारे नियंत्रण में नहीं है, our life will be destroyed by the words that we are speaking. तो हमारे जो जीवन है उसका नाश होगा उन शब्दों के द्वारा जो हम बोल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us take this word very seriously, brothers and sisters. इस वचन को हम गंभीर रूप से ले। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Joshua 1:8 says, यहोशू उसका 1:8 कहता है, this book of the law shall not depart from your mouth. जो नियम या व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। Yeah, read further. यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Hallelujah. हालेलुया। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate
in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Just now Sam was sharing that lady Martha or Mariam, I do not know. Margaret. Yeah. She received an envelope. तो अभी हमने सुना जो भाई सैम ने बताया कि जो उन्होंने उदाहरण दिया था मार्गरेट करके जो स्त्री थी उसके बारे में, And she had reverence for that packet. तो उनके पास में वो एनवलप दिया था उनकी मालकिन ने, और उनको उस एनवलप के प्रति एक कैसा डर था, एक आदर था. Hallelujah. हालेलुया. God has given us this envelope. तो परमेश्वर ने हमें ये एनवलप जो है वो दिया है. Many people have reverence for this envelope. तो बहुत से लोगों के मन में इस एनवलप जो वचन है उसके प्रति आदर है. They keep it under their pillow. वो क्या करते हैं, वो आदर को उस बाइबल को अपने बिस्तर के नीचे रख देते हैं, But they never open it and read. लेकिन वो कभी उसको खोल के पढ़ते नहीं. Hallelujah. हालेलुया. Throughout their life, they just keep it under their pillow. और पूरे जीवन भर वो उनके तकिए के नीचे रखते हैं. Hallelujah. हालेलुया. And the whole life they will keep complaining. और पूरे जीवन भर वो कुड़कुड़ाते रहते हैं. When they go to heaven, there they will know, Arey, the treasure was there under my pillow. और जब वो स्वर्ग में जाएंगे तब उनको पता चलेगा, अरे जो ट्रेजर था वो मेरे तकिए के नीचे ही था. Hallelujah. जो खजाना था वो मेरे तकिए के नीचे ही था. This is that book. ये वो पुस्तक है. This book of the law shall not depart from your mouth. ये व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से कभी निकलने ना पाए. Hallelujah. Hallelujah. Day and night speak the word of God. दिन रात परमेश्वर के वचन को बोलो. Hallelujah. हालेलुया. I am the born again child of the living God. मैं परमेश्वर का नया जन्म पाया हुआ पुत्र हूँ. I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ. All things have passed away. Behold, everything has become new. पुरानी चीजें बीत गई, हर एक चीज नई हो चुकी है. Speak whatever is written about yourself. अपने आप के विषय में जो बोला गया है वो बोलिए, And those things will manifest in your life. और वो चीज आपके जीवन में प्रकट होंगी. Do not speak negative. Do not speak the situations. नकारात्मक ना बोले. जो परिस्थिति है उसका प्रतिसाद में आप कुछ ना बोले. Hallelujah. हालेलुया. Do not speak the language of the world. संसार की भाषा को आप ना बोले. We are no more of the world. हम संसार के नहीं, We belong to the kingdom of the Most High God. लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के हैं. So our languages should change. तो हमारी जो भाषा है वो बदलनी चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. We should speak the language of the kingdom of heaven. तो हमें स्वर्ग की भाषा बोलनी है. Hallelujah. हालेलुया. We should speak the word of God हमें परमेश्वर का वचन बोलना है with full authority. अधिकार के साथ में. Hallelujah. हालेलुया. You can speak against the sickness and disease, हम बीमारी के विरुद्ध बोल सकते हैं and it will flee from you, और वो आपसे भाग जाएगी. because Bible says so. क्योंकि बाइबल कहती है यह, Resist the devil and he will flee from you. शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा. Because sickness and diseases are not from God, it is from the demons. क्योंकि जो बीमारी है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन दुष्टात्मा की ओर से है. Hallelujah. Hallelujah. So you have to resist it in Jesus' name. तो तुम्हें उसका सामना करता है यीशु मसीह के नाम से. And then you will walk in divine health. और उसके बाद आप दैवीय आरोग्य में चलोगे. Hallelujah. Hallelujah. Sickness and diseases are not for the children of the Most High God. जो बीमारियां है वो परमेश्वर के बेटों के लिए, उसके बच्चों के लिए नहीं है. Hallelujah. We Hallelujah. are called to walk in divine health. हमें बुलाया गया है कि हम दैवीय आरोग्य में चले. Hallelujah. हालेलुया. Aging is not for us. जो बुढ़ापा है वो हमारे लिए नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. We can live young forever हम जवान रह सकते हैं हमेशा के लिए. because we have passed from death into life everlasting. हम मृत्यु से लेकर हम जीवन में हमने प्रवेश कर लिया है. Hallelujah. हालेलुया. Do not compromise with sickness and disease. बीमारी के साथ में समझौता ना करें. Fight against it. उसके विरुद्ध आप युद्ध लड़े. Speak death about it. उसको आप मृत्यु बोले. Hallelujah. हालेलुया. Speak life over your body. अपने जीवन पर आप जीवन को बोले. Hallelujah. हालेलुया. Say that I will walk in divine health. कहे कि मैं दैवीय आरोग्य में चलूंगा. I will walk in divine joy. मैं दैवीय आनंद में चलूंगा. I will walk in divine nature of God. मैं परमेश्वर के दैवीय स्वभाव में चलूंगा. Hallelujah. हालेलुया. This is a blessing that God has bestowed on every one of us. ये आशीष परमेश्वर ने हमें से हर एक के ऊपर उंडेल दी है. Hallelujah. हालेलुया. So use your tongue rightly अपने जीभ का सही से इस्तेमाल करें. so that you can become a good teacher for तो others. आप
सही शिक्षक बन सकते हो दूसरों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Because people will be drawn towards you when they notice your life. जब लोग आपके जीवन को देखेंगे तो आपके जीवन की ओर वो आकर्षित होंगे। Because Bible says that we are light and salt of this earth. क्योंकि वचन कहता है कि हम इस सृष्टि में प्रकाश और नमक के समान है। Hallelujah. Let your Hallelujah. light shine before men, Bible says. वचन कहता है कि होने दो कि तुम्हारा प्रकाश इस संसार के ओर चमके। Let they see your good deeds and let they glorify your Father who is in heaven. वो तुम्हारे भले कामों को देखे और जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है उसको वो धन्यवाद दे। Hallelujah. हालेलुया। Our life is hidden in Christ. हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। So let Christ be seen through every one of us. तो हम में से हर एक के द्वारा वो मसीह दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If Christ is seen, अगर मसीह वो दिखता है people will be drawn towards Christ तो लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे and they will be set free. और वो छुटकारे को पाएंगे। Hallelujah. हालेलूया। So God has blessed every one of us. तो परमेश्वर ने हमें से हर एक को आशीषित किया है So we will thank the Lord for that. और हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। Time is already over. तो समय ज्यादा हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। So let us pray. Let us all stand up. तो हम सब खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Father God, for this wonderful time. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। Lord, you spoke to us through your word. प्रभु आपने वचन से हमसे बात किया। We believe, Lord, हम विश्वास करते we हैं। receive your word. हम ग्रहण करते हैं। We believe that we are born of God हम विश्वास करते हैं कि हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है and we are able to tame our tongue और हमारे जीभ को हम वश में ला सकते हैं because you are living inside of us. क्योंकि आप हमारे अंदर रहते हो। Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा help every one of us हम में से हर एक की आप सहायता कीजिए to use our tongue wisely. कि हम हमारे जीभ का सही से इस्तेमाल कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, धन्यवाद पिता that you blessed every one of us, Lord. कि आपने हम में से हर एक को आशीषित किया We है। give glory to you, Lord. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। We give you honor, Lord. हम आपको आदर देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। If anyone new has come for the first time, you can come front. अगर कोई नया आया है इस चर्च में पहली बार आए हैं तो आप आगे आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Okay. We'll have the last hymn. Amen. Thank you, Jesus. Amen, church. How many of y'all enjoyed today's word? How many of y'all enjoyed today's service, guys? You know? Bible says there is fullness of joy in His presence. I cannot just control my joy today. I'm being very honest. This morning is just that the joy is bubbling inside. Amen. So we learn one new song in the morning, है ना? याद है सबको हम लोग ने आज जो पहला नया गाना सीखा था? Everybody knows it? Okay. Now since the service is over, let's take the chair a little bit aside. Chair को बाजू में ले लेंगे. And let's come here. Let's I want each and everybody to come here in the center. Be just behind the cameras. Take the chairs at the side. Take the chairs at the side, guys, and let's gather in a circle. I want each and everybody to catch each and one another's hands. है ना? एक में के हाथ पकड़ना है हमको. So chairs को थोड़ा बाजू में सरकाइए. हमारा राजा का नाम क्या है?
सुनने नहीं आ रहा है। यीशु नहीं यार, नहीं नहीं, यीशु नहीं है। उसका नाम क्या है? ओके, इधर के साइड वाले लोग थोड़ा चेयर रखे हैं थोड़ा सा मूवमेंट के लिए। ओके, सो एवरीबडी नोज द एक्शन। ओके, हम लोग ने जो सुबह में गाना सीखा था, वी गोइंग टू सिंग इट वन मोर टाइम। ऑलराइट, कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार पानी पे कौन चला है क्या गाइस? पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से शैतान भी डरता है यीशु के नाम किसके नाम से? कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार क्रूस को क्रूस को उठाया है मौत को हराया है क्रूस को उठाया है मौत को हराया है अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है ओ अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार 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 करो जय जयकार तो करो जय जयकार Amen. I would like to call upon the pastor to give the last benedictions. Hallelujah.
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए, समय पे आइए। आमीन।